اور یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، اللہ اکبر، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ حسن کا ایک حصہ دے دیا گیا تھا یوسف کو، یوسف کو حسن کا ایک حصہ دے دیا گیا تھا۔ ایسی خوبصورتی جب اتنا خوبصورت ہو اور سیرت بھی اعلیٰ ہو، چہرہ بھی خوبصورت ہو اور سیرت بھی اعلیٰ ہو، تو پھر ایک عورت کیا، پھر ایک عورت کیا، پورا محلہ بھی اس کے پیچھے پڑ سکتا ہے۔ اس لیے میں نے پہلے بھی کہا، آج بھی کہتا ہوں کہ لوگ اگر آپ کے خلاف، میرے خلاف سازشیں کریں، چاہے جھوٹے پروپیگنڈے کریں، الزامات لگائیں، لیکن اگر آپ کا دل خالص ہے، آپ کو اللہ پر یقین ہے، توکل اللہ پر ہے، بھروسہ اللہ پر ہے، تو چاہے جو کوئی کچھ بھی کر لے، اللہ رب العالمین آپ کو عزتوں سے سرفراز ضرور فرمائے گا، عزت لازمی دے گا، اور ادب و احترام دنیا والوں کے نزدیک اللہ رب العالمین مزید بڑھا دے گا۔ سورہ یوسف سے آغاز کریں گے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کو سب سے زیادہ بہترین احسن قصہ سنانے لگے ہیں۔ ایسی سٹوری کہ جو کائنات میں کوئی لکھنے والا نہیں، ہم نے ایسی سٹوری اور قصہ آپ کو سنائیں گے کہ ساری کائنات میں ایسی سٹوری اور ایسا بہترین قصہ کبھی آپ نے سنا نہیں ہوگا، وہ ہم آپ کو سنانے لگے ہیں۔ اور وہ قصہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا ہے۔ تو سب سے پہلے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو احسن القصص کیوں کہا؟ احسن القصص کہ بہترین قصہ، بہترین سٹوری کیوں کہا؟ اور بھی قصے ہیں، انبیاء کے واقعات ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام کے واقعے کو احسن القصص کہا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب سورہ یوسف کا مطالعہ کریں گے اور ترجمے سے اس کو پڑھیں گے تو آپ کو تاریکی نظر آئے گی، اندھیرا نظر آئے گا، کہیں آپ کو بھائیوں کی چالیں نظر آئیں گے، کہیں آپ کو کسی عورت کی چالاکیاں نظر آئیں گی، کہیں آپ کو قید خانے نظر آئیں گے، کہیں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے کہ جو قید میں تو دوست بن گئے اور باہر نکل کر بھول گئے۔ یہ سب آپ کو تاریکیاں اور اندھیرے دکھائی دیں گے، لیکن ان تاریکیوں اور اندھیروں کے پیچھے جو روشنی کار فرما ہے، ان تاریکیوں، مایوسیاں، اندھیروں کے پیچھے جو امیدیں اور جو اجالے کار فرما ہیں، اس لیے اس کو احسن القصص کہا گیا ہے کہ بظاہر تمہیں تاریکیاں نظر آ رہی ہیں، بظاہر تمہیں کنویں کی تاریکی نظر آ رہی ہے، بظاہر تمہیں جیل کی تاریکی نظر آ رہی ہے، بظاہر تمہیں قتل نظر آ رہا ہے، بظاہر تمہیں اپنوں کی چالیں نظر آ رہی ہیں، اپنوں کا مکر اور فریب نظر آ رہا ہے، لیکن یہ سب دنیا والے کر رہے ہیں، اس اللہ نے کوئی اور ہی پلان بنا کے رکھا ہوا ہے تمہارے لیے، اس اللہ نے کوئی اور ہی منصوبہ بنا کے رکھا ہوا ہے تمہارے لیے، اس لیے اس کو احسن القصص کہا گیا ہے۔ اور پھر ایک کہنے والے نے کہا کہ جس کو دنیا میں بے شمار غم لاحق ہو نا، بے شمار غم لاحق ہو، اور وہ بہت زیادہ پریشانیوں کا شکار ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ ایک مرتبہ سورہ یوسف ترجمے کے ساتھ پڑھ لے، اس کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، کیونکہ جو غم اور پریشانی اس میں بیان کی ہے اس سے تو کئی کم ہوں گی تیری پریشانیاں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی، اللہ اکبر، یعقوب علیہ السلام بڑی محبت کرتے ہیں یوسف سے، ہمارے والد بڑی محبت کرتے ہیں یوسف سے، سوتیلے بھائی تھے یہ۔ بھائیوں نے پلان بنا لیا یوسف علیہ السلام کو ختم کرنے کا، معاذ اللہ، اس کو ختم کر دیتے ہیں، جب یہ نہیں رہے گا،
जब ये नहीं रहेगा, ऑटोमेटिक तवज्जो वालिद साहब की हमारी तरफ हो जाएगी, लिहाजा हम इसको खत्म कर देते हैं। मंसूबा बंदी के दौरान सारे भाइयों में से एक भाई इससे मुत्तफिक नहीं था। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए यूसुफ के साथ, ये बहुत ही बुरा हो जाएगा, ये बहुत ही गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई लोग गलत मंसूबा बंदी कर रहे होते हैं ना, या कोई कौम या कोई बिरादरी या किसी को नुकसान पहुंचाने की कोई प्लानिंग कर रहा होता है ना, तो उसमें एक शख्स लाजमी ऐसा होता है जो उनको उस चीज से रोकता है। बिरादरी में भी, कौम में भी, कबीले में भी, दोस्तों में भी, कि अगर तुम फला बंदे को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हो तो ऐसा नहीं करो, ये मुनासिब नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं करो। हर खानदान में, बिरादरी में ऐसा बंदा होता है, तो इनके पास भी था। बहरहाल इन्होंने जान छुड़ाने के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम से कुएं में उनको फेंक दिया, कुएं में फेंक दिया कि चलो मारते नहीं है, कुएं के अंदर डाल देते हैं, कत्ल नहीं करते, कुएं में फेंक देते हैं। और फिर किस अंदाज से वालिद साहब के पास जाना है, किस अंदाज से वालिद साहब को बताना है कि यूसुफ के साथ क्या हुआ, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता उतार लिया इन्होंने कुर्ता उतार लिया था यूसुफ अलैहिस्सलाम का। और वो क्यों? ताकि एक शरीर के जहन में शरारत सूझी कि हम एक मेंढे को ज़िबा करते हैं, एक जानवर को ज़िबा करते हैं, और उसका खून हम यूसुफ के कुर्ते पे लगा देते हैं और कहते हैं कि यूसुफ को भेड़िया खा गया, यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िया खा गया। ये प्लानिंग हो गई, मंसूबा हो गया। जाने के लिए वापस रात का इंतजार कर रहे हैं, जाने के लिए वापस इनके भाई रात का इंतजार कर रहे हैं कि रात के अंधेरे में हम अपने वालिद को यह सब बताएंगे। क्यों रात के अंधेरे का उन्होंने इंतजार क्यों किया? वो इसलिए कि इंसान जब झूठ बोल रहा होता है ना, वो जबान से तो चाहे झूठ बोल रहा हो, लेकिन उसके चेहरे से पता चल जाता है कि ये जो मामला है गड़बड़ है, ये झूठ बोल रहा है, और इसके चेहरे से भी मालूम हो रहा है, इसके चेहरे से भी मालूम हो रहा है। उन्होंने प्लानिंग की थी कि हम तो सच बोलेंगे जाके, एक तरीके से ये सच होगा, लेकिन तुम्हारे चेहरे के तासुरात बता देंगे कि तुम कौन हो, तुम झूठे हो। और रात का अंधेरा इसलिए, वो याकूब थे, पैगंबर थे, और कोई दाना अक्लमंद इंसान उसके सामने अगर कोई बात रखी जाए तो वो चेहरे के तासुरात और बॉडी लैंग्वेज से पता चला लेता है गड़बड़ है, कोई गलती है, ये कुछ छुपा रहे हैं। इसलिए इन्होंने रात के अंधेरे का इंतजार किया कि जब हम अपने वालिद को बताएंगे तो हमारे चेहरों से कहीं हमारे वालिद ये जान न लें कि हम क्या हैं, हम झूठे हैं। लेकिन ये याद रखिए कि कत्ल करने वाला कातिल, उसका कत्ल कभी छुपता नहीं, कभी नहीं छुपता। ये एक वाहिद जुर्म है कि जो जितनी प्लानिंग और मंसूबा बंदी से किया जाए, कोई ना कोई क्लू जरूर सामने आ जाता है, लाजमी आ जाता है। चाहे वो कितने ही दिन बाद, कितने ही साल बाद आए, सीआईडी वगैरह ये सब पकड़ के ले आते हैं, क्लू सामने लाजमी आ जाता है। इनका भी क्लू सामने आ गया था, याकूब अलैहिस्सलाम के सामने इनका क्लू सामने आ गया। और वो क्या था? अच्छा, भेड़िया खा गया, यूसुफ को भेड़िया खा गया, और ये दलील के तौर पे तुम कुर्ता लेकर आए हो उसका। अच्छा, तो भेड़िया कैसा था? बहुत समझदार था भेड़िया, बहुत अक्लमंद भेड़िया था कि उसको यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता कहीं से फाड़ना नहीं था। उसने कहा यूसुफ से पहले, यूसुफ से भेड़िए ने पहले कहा कि कुर्ता उतार दो अपना पहले, फिर मैं तुम्हें पंजे मारूंगा या फिर मैं तुम्हें दांतों में दबाऊंगा। तो यूसुफ ने कुर्ता उतार दिया और भेड़िया यूसुफ को खाता रहा और खून कुर्ते पे लगाता रहा। बहुत अक्लमंद भेड़िया था। वो समझ गए याकूब अलैहिस्सलाम कि इन्होंने अपने भाई के साथ सलूक अच्छा नहीं किया। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया फसब्रुन जमील, मैं तो सब्र करने वाला हूँ, वल्लाहुल मुस्तआन,
और मेरा मददगार मेरा मौला मेरा अल्लाह है। बस परेशानी है, इतनी बड़ी परेशानी, बच्चे का गम है, फसब्रुन जमील, मैं सब्र करूंगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद तलब करूंगा। वहां पर काफिला गुजर रहा है और काफिला गुजरते हुए पानी की जरूरत पड़ी, कुएं में डोल लटकाया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस डोल को पकड़ लिया और उस डोल के जरिए यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं से बाहर आ गए। क़ाला या बुशरा हाज़ा गुलाम, वो देख के खुश हो गए, अरे ये तो बच्चा है, नौजवान है यूसुफ अलैहिस्सलाम। और ये काफिला, इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये बच्चों को खरीदा और बेचा भी करता था, खरीदो फरोख्त करते। तो देखा, दिहाड़ी लग गई, बच्चा सामने आ गया, पता ही नहीं कि है कहाँ का है, कौन क्या है, कोई हसब नसब मालूम नहीं, हमारी तो दिहाड़ी लग गई, हम तो इसको बेच देंगे। और बेचा कहाँ? मिस्र के बाजार में। अल्लाह अकबर। दो पैगंबर हैं कि जिनकी किफालत, जिनका पालना और जिनका ओढ़ना बिछोना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुश्मन का महल बना दिया था। एक मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल में परवरिश पाए, फिरौन के महल में परवरिश पाने वाले, और दूसरा ये यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज मिस्र के महल में परवरिश पाने वाले। अल्लाह अकबर। देख रहे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की प्लानिंग, अल्लाह का मंसूबा। इसलिए अपनी प्लानिंगों के ऊपर ज्यादा गौर करने के बजाय कुछ अल्लाह पे भी छोड़ दिया करें। ठीक है, बस हमने जो कर लिया, बाकी अल्लाह रब्बुल आलमीन है। फिरौन और अजीज मिस्र दोनों बेऔलाद थे, और दोनों ने ये देखा कि ये नौजवान बच्चा छोटा, इसको ले लेते हैं, इसको पाल लेते हैं और इसकी परवरिश कर लेते हैं। अल्लाह अकबर। पहुंच गए मिस्र, अजीज मिस्र के महल में यूसुफ अलैहिस्सलाम। उन्होंने तो कुएं में फेंका था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको मिस्र पहुंचा दिया, और ये सारी तरतीब अल्लाह रब्बुल आलमीन की चल रही है। वहां एक औरत है, अल्लाह अकबर, अजीज मिस्र की बीवी। सबसे पहले उसके बारे में ये जान लीजिए, अजीज मिस्र की बीवी के बारे में अल्लाह ने उसका नाम नहीं लिया, नाम ही नहीं, अल्लती अल्लती अल्लती, वो जो औरत, नाम ही नहीं लिया। नाम का कोई जिक्र ही नहीं है कि उसका नाम क्या था अजीज मिस्र की बीवी का। सवाल होना चाहिए, नाम क्यों नहीं लिया अल्लाह ने, नाम क्यों नहीं लिया? अल्लती अल्लती कहकर मुखातिब किया गया। तो एक मुफस्सिर ने खूबसूरत तबसरा करते हुए ये लिखा कि वो थी तो रानी, अपने महल की थी तो वो मलका, वो थी तो शहजादी, थी वो मालकन, थी वो अमीर तरीन औरत। अजीज मिस्र की बीवी है, उससे अमीर तरीन औरत कौन होगी? वो ये सब थी। लेकिन जिस वक्त उसने अपनी लिमिट क्रॉस की, तो ना वो रानी रही, ना वो शहजादी रही, ना वो मालकन रही, ना ही वो अमीर तरीन औरत रही, वो कुछ नहीं रही, सिर्फ एक औरत बन के रह गई, सिर्फ एक औरत। अल्लती अल्लती, कि जो औरत अपनी लिमिट क्रॉस कर दे, जो औरत बदकारी की तरफ माइल करे किसी को, तो वो उसका कोई ओहदा और कोई मनसब नहीं होता, वो सिर्फ महज एक औरत होती है, वो सिर्फ महज एक औरत होती है। इसलिए अल्लाह ने जिक्र किया है अल्लती अल्लती अल्लती। और यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती, अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हुस्न का एक हिस्सा दे दिया गया था यूसुफ को, यूसुफ को हुस्न का एक हिस्सा दे दिया गया था। ऐसी खूबसूरती, जब इतना खूबसूरत हो और सीरत भी आला हो, चेहरा भी खूबसूरत हो और सीरत भी आला हो, तो फिर एक औरत क्या, पूरा मोहल्ला भी उसके पीछे पड़ सकता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इतना हुस्न अता फरमाया था, अल्लाह अकबर। और ये भी याद रखिए, ये भी जहन में बिठा लीजिए, ख़वातीन जरूरी तौर पे बिठाइए कि जो औरत होती है ना, उसका कायदा यह है, औरत का कायदा यह है
کہ वो मतलूब होती है, तालिब नहीं होती। वो मतलूब होती है, चाहिए होती है, वो मर्द को वो चाहिए होती है, वो मतलूब होती है, उसको कोई चाहिए। ये फितरत के खिलाफ है औरत के, वो तालिब नहीं होनी चाहिए, वो मतलूब होनी चाहिए। ये इसी में उसका हुस्न है, इसी में उसकी जीनत है, इसी में उसका वकार है, इसी में उसका अदब है कि वो मतलूब ना बने बल्कि वो तालिब बने। जब देखा, अल्लाह अकबर, बुराई का इरादा किया यूसुफ अलैहिस्सलाम, देखें कितने फितने थे यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने। नौजवान ने सुने, नौजवान बच्चे, नौजवान बच्चियां सुने, कितने फितने थे यूसुफ के सामने। खूबसूरत औरत, मालदार औरत, शहजादी, मलका, रानी, और वगल्लकतिल अबवाब, दरवाजे भी, एक दरवाजा नहीं, सारे एक के बाद एक दरवाजे बंद कर दिए। और फिर यहां बस नहीं, हाई तलका, लॉक भी लगा दिया, ताले लगा दिए। अल्लाह अकबर, इस कदर बुराई का इरादा कर चुकी है यूसुफ अलैहिस्सलाम से। लेकिन सीरत यूसुफ यह है, पैगाम यूसुफ यह है, और यूसुफ की सीरत का पैगाम यह है कि चाहे तुम्हें कोई कितनी ही बुराई की दावत दे और तुम्हारे सामने लातादाद फितने मौजूद हों, तो फरमाया उस वक्त तुम्हें क्या करना है, अपनी विल पावर को मजबूत रखना है। विल पावर, ये बहक जाता है ना इंसान, भटक जाता है, बहक जाता है, गलती कर बैठता है, उसका कुव्वत इरादा इंतहाई कमजोर होता है। और यूसुफ का कुव्वत इरादा इंतहाई मजबूत था, विल पावर इंतहाई मजबूत थी, बहके नहीं, भटके नहीं। क़ाल माअल्लाह, अल्लाह की पनाह में आता हूं मैं अल्लाह की पनाह में आता हूं, तो ये जो मुझसे शरारत करवाने का सोच रही है, माअल्लाह। इसीलिए कहा जा रहा है कि अपनी विल पावर को, नौजवान अपनी विल पावर को, कुव्वत इरादी को बड़ा मजबूत रखें। और फिर वलक़द हम्मत बिही, ये भी तवज्जो से सुनिएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ये फरमा रहा है कि वो भी बुराई का इरादा कर लेते, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके सामने बुरहान को रख दिया, दलील रख दी। कोई चीज उनके सामने आ गई, कोई चीज उनके सामने आ गई, क्या आ गई इसकी कोई तफसील नहीं है। लेकिन दूसरी बात सुनिए, यही तो असल मुकाम है, मर्तबा है कि सारी की सारी चीजें मैसर हैं, मौजूद हैं, कोई पूछने वाला नहीं। हत्ता के अजीज मिस्र भी दयूस है, उसकी बीवी के साथ कोई कुछ भी करे उसको टेंशन ही नहीं, उसको खैर जाने तो कोई बात नहीं। ये सारी चीजें होने के बावजूद फरमाया कि अगर वो हो सकता इसका इरादा कर लेते, लेकिन उन्होंने इसका इरादा नहीं किया और वो हमारे नेकोकार बंदों में शामिल हो गए। नहीं समझे, मिसाल देके आपको समझाता हूं। आपने रोजा रखा हुआ, सख्त गर्मी में रोजा रखा हुआ है, रोजा रखा हुआ है, आप बाजार से जा रहे हैं, आपने देखा एक बंदा ठंडा बर्फ का पानी पी रहा है, आप गर्मी में शराबोर हैं, पसीने बह रहे हैं और रोजा भी है आपका, और सामने एक बंदे को देख रहे हैं जो पानी पी रहा है या पानी का गिलास पड़ा है या कोई ठंडा मशरूब पड़ा है, आपकी तबीयत माइल होगी कि नहीं होगी? आपकी तबीयत का मिलान उसकी तरफ होगा या नहीं होगा? ये ठंडा पानी है, मशरूब है, गर्मी है, चलो चल के पी लेता हूं, मिलान तो हो रहा है, तबीयत आगे तो बढ़ रही है आपकी तबीयत। लेकिन आप क्या सोच के नहीं पी रहे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है कि जब आफताब गुरूब होगा तब तुमने रोजा खोलना, उससे पहले नहीं। तो ये सारी चीजें मौजूद होने के बाद तबीयत मिलान की तरफ तो जा रही है, लेकिन उस तबीयत को अल्लाह के हुक्म और शरीयत की पाबंदी में रोकने का नाम ही तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करने वाला है। यही तो नाम है इस चीज का, यही तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की सीरत है। समझ में आ रही है बात? तबीयत का मिलान है, तबीयत बढ़ रही है आगे, लेकिन शरीयत के पाबंद रह के उससे बाज रहना ये मोमिन की निशानी है, ईमान वाले की निशानी है। अल्लाह अकबर। और फिर फरमाया कि वो भागे, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दौड़ लगाई, वो भागे। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब दौड़े तो फरमाया हमने दरवाजों को उनके लिए खोल दिया,
हमने दरवाजों को उनके लिए खोल दिया। कोई आए तो सही हमारी तरफ, कोई हमें राजी करने की कोशिश तो करे। हम बंद दरवाजों को खोल देंगे, हम बंद रास्तों को खोल देंगे, हम तुम्हारी तंगी से निकलने का रास्ता दे देंगे, हम तुम्हारी परेशानी से निकलने का हमारे बन जाओ और इस तरह यूसुफ की तरह हमारे बन जाओ। हम देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी के अंदर बहारें पैदा करते हैं और तुम्हारी किस्मत के बंद दरवाजे हम कैसे खोलते हैं। समझ में आ रही है यूसुफ अलैहिस्सलाम की सीरत। भागे, जब ये भागे, पीछे से अजीज मिस्र की बीवी ने पकड़ना चाहा कुर्ते से। जब आखिरी दरवाजा रह गया और वो खुला तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का कमीज, कुर्ता, उसका एक हिस्सा उस औरत के हाथ में आ गया। वहां भी देखें वो कुर्ता लेके चले गए थे भाई, और यहां भी कमीज का जिक्र है यूसुफ अलैहिस्सलाम की। जब दरवाजा आखिरी खुला, अजीज मिस्र खड़ा था सामने। मैंने पहले कहा दयूस था वो दयूस को कोई परवाह नहीं, बल्कि बीवी जो अजीज मिस्र की बीवी थी बदल गई, फौरन बदल गई। कहने लगी ये आपका गुलाम, ये मेरे साथ बदकारी करना चाह रहा है, इसने मेरे ऊपर हमला किया है, ये यूं कर रहा है, ये यूं कर रहा है। फौरन पलट गई। हालांकि अजीज मिस्र के लोगों ने, दानिश्वरों ने उसकी बीवी के खिलाफ गवाही दे दी थी कि अगर यूसुफ का कुर्ता आगे से फटा है, यूसुफ का कुर्ता पीछे से अगर फटा है, तो इसका मतलब यह है कि आपकी बीवी में खोट है आपकी, क्योंकि पीछे से बंदा भाग रहा है, उसको पकड़ना है तो पीछे से फटा है। अब जब ये सारी चीजें सामने आ गई कि बीवी सही नहीं है, औरत सही नहीं है, और औरत भी फौरन बदल गई, कहा बस ठीक है खामोश, इस बात को यहीं दबा दो, ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, और डालो यूसुफ को जेल के अंदर। जेल में डाल दिया यूसुफ अलैहिस्सलाम को। अच्छा, उस जेल में डालने से पहले ना और औरतों ने भी ना पूछा कि तुम्हें ये अच्छा लग रहा है? गुलाम था, ये तो गुलाम था, नौकर था, खादिम था, तुम इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई कैसे? कहा तुमने अभी यूसुफ को देखा नहीं। कहने लगे तुमने अभी यूसुफ को देखा नहीं है, यूसुफ को देखना है। अल्लाह अकबर। यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखने के लिए पहले फल भी दे दिए हाथ में और छुरी भी दे दी हाथ में, और जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को औरतों ने देखा तो फल के बजाय अपनी उंगलियां काट बैठी। वक़ुल्ना हाशा लिल्लाह मा हाज़ा बशर, ये तो इंसान ही नहीं है, इतना खूबसूरत, ये तो बशर ही नहीं हो सकता, और अपनी उंगलियां काट बैठी। और तवज्जो के साथ सुने कि उंगलियां कट भी रही हैं लेकिन दर्द का एहसास नहीं हो रहा, दर्द का एहसास नहीं हो रहा, और ये कह रही है कि माँ हाज़ा बशर, बातों में लगी, इतना हसीन, इतना जमील, इतना खूबसूरत, ये इंसान नहीं, ये तो कोई फरिश्ता है, इंतहाई कोई करीम फरिश्ता है, और दर्द का एहसास भी नहीं हो रहा कि उंगलियां काट बैठी हैं। तवज्जो के साथ एक नुक्ता सुनेंगे कि एक शख्स की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर और उसकी खूबसूरती में गिरफ्तार होकर उंगलियां काटी, दर्द का एहसास तक ना हुआ। फरमाया ये मोहब्बत जब तुम एक इंसान से इतनी कर सकते हो तो अल्लाह और उसके रसूल से इतनी मोहब्बत क्यों नहीं करते? अल्लाह और उसके रसूल से तुम्हें इतनी मोहब्बत होनी चाहिए कि कोई तकलीफ ना लगे तुम्हें, कोई दर्द ना लगे, कोई परेशानी ना लगे, तुम्हारे एहसासात ऐसे होने चाहिए, तुम्हें इतनी मोहब्बत होनी चाहिए अल्लाह और उसके रसूल से। डाल दिया यूसुफ को जेल में। वहां भाइयों ने पहले साजिश की, फिर यहाँ पे कुएं में डाल दिया, फिर कुएं वालों ने मिस्र में भेज दिया, फिर यहाँ अजीज मिस्र के पास पहुंचे, उनकी बीवी ने इनके साथ ये मामलात कर दिया, आखिर में वो जेल के अंदर चले गए। तारीकियां हैं या नहीं? मैंने शुरू में कहा कि तारीकियां आपको इस सूरत में मिलेंगी, लेकिन अहसनल क़सस कहने का मतलब यही है कि उन तारीकियों के पीछे जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से उम्मीदें वाबस्ता है ना, उसके ऊपर गौर कीजिए कि अल्लाह का प्लान क्या है, अल्लाह का मंसूबा क्या है, उसकी तरतीब क्या है। मिल गए उनको फिर दो साथी वहां पे यूसुफ अलैहिस्सलाम को। अच्छा, इसमें भी ना, इसमें 4 ख्वाब बयान हुए हैं इस सूरत में। इस सूरत में 4 ख्वाब बयान हुए, और ख्वाब 2 तरह के होते हैं, एक ख्वाब रहमानी होता है और एक ख्वाब शैतानी होता है। तो इसलिए कोई बुरा ख्वाब देखें ना, कोई बुरा ख्वाब देखें जिससे आप डर जाएं,
یہ کیا دیکھا بھائی میں نے؟ تو برا خواب، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یا آپ پہنچ جائیں کسی کے پاس کہ اس کی تعبیر بتا دینا، خاموش. اور خاموش کس انداز سے کروٹ بدلی ہے اپنی، آنکھ کھلی ہے کروٹ بدل لیجئے. اور من حمزہ ونفخہ ونفثہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ 3 بار پڑھ کر اپنے الٹے کندھے پر تھتکار لیجئے، ایسے پھونک نہیں، تھتکار لیجئے، اور پھر آرام سے آنکھیں بند کر کے دعا پڑھ کے سو جائیے. ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ جب آپ الٹے کندھے پر الٹی طرف تھتکار ہیں نا تو ذرا دیکھ لیے گا کہ آپ کے برابر میں آپ کی زوجہ سو رہی ہوتی، کہیں ایسا نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائیں آپ. تو کندھے پہ تھتکارنا. تو کہا ہم نے یہ خواب دیکھا، یوسف علیہ السلام نے خواب کی ان کو تعبیر بتا دی. اس میں سے جو ان کو شراب پلانے والا تھا عزیز مصر کو، ساقی، اس کی رہائی ہو گئی. پھر اس کے بعد عزیز مصر نے، کیونکہ ٹائم لمبا ہو رہا ہے اس لیے تیزی کے ساتھ بڑھ جاتا ہوں، عزیز مصر نے خواب دیکھا، وہ 7 موٹی گائیں اور یہ سارے معاملات دیکھنے کے بعد اس نے اپنے لوگوں کو بلایا کہ بھائی اس کی تعبیر بتاؤ کہ کیا تعبیر ہونی چاہیے. لوگوں نے کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، وہ سیٹسفائی نہیں ہو رہا، مطمئن نہیں ہو رہا. پھر اس کو یاد آیا کئی سالوں کے بعد اس ساقی کو، ارے وہ جیل میں ایک یوسف ہے، جیل میں وہ خواب کی تعبیر بڑے اچھے انداز سے بتاتا ہے، اس کو لے کر آتے ہیں اور وہ آپ کو خواب کی تعبیر بتا دے گا، سمجھا دے گا. کہا اچھا وہ کون ہے؟ کہا وہ سالوں ہو گئے وہ جیل میں پڑا ہوا ہے. وہ پہنچا، یوسف ایھا الصدیق، کہنے لگا اے یوسف، اے میرے دوست. کہاں ہے کہ دوست بھائی، کہاں کے دوست؟ یوسف، سالوں بعد تمہیں یوسف کی یاد آ رہی ہے، کہا بھی تھا جا کے ذکر کرنا عزیز مصر سے، تجھے سالوں بعد یوسف کی یاد آ رہی ہے، کہہ رہا ہے میرے دوست. کیسا دوست ہے تو، کیسا دوست ہے تو، سالوں کے بعد آ کے مجھے کہہ رہا ہے میرے دوست. چل کام پڑا ہے تو بھی دوستی یاد آئی ہے نا. یوسف نے بھی کہا ایسے نہیں جاؤں گا، ایسے نہیں جاؤں گا، بتا دی خواب کی تعبیر بھی سمجھا دوں گا، سب ہو جائے گا، لیکن باہر ایسے نہیں نکلوں گا میں. باہر نکلنا ہے، نکالنا ہے تو میری کچھ شرائط ہیں. یہ کیسا قیدی ہے، یہ کیسا قیدی ہے کہ باہر نکلنے کی اس کے سارے معاملات پورے ہو رہے ہیں، آ جاؤ باہر آ جاؤ، لیکن کہہ رہا ہے میں باہر نہیں آ سکتا، سالوں ہو گئے، میری شرائط مانو گے، میں اپنی شرائط پر جب پورا اتاروں گا تمہیں تب میں باہر آؤں گا. وہ شرط کیا ہے؟ اب بلاؤ اس کو، عزیز مصر کی بیوی کو. میرے اوپر اس نے الزام لگایا ہے، اس نے میرا دامن اس پہ داغ لگایا ہے، اور ان عورتوں کو بھی بلاؤ جو اس کی ہم نوا تھی، ان سب کو بلاؤ اور گواہی دے وہ میری حمایت میں کہ میں پاک دامن ہوں، میں بے داغ ہوں، میں بالکل صاف ستھرا ہوں. یہ گواہی وہ دیں گی تو پھر میں باہر آؤں گا. مان لیا پھر ان لوگوں نے. حصل حق، فرمایا کہ حق واضح ہو گیا کہ کون غلط تھا اور کون صحیح تھا، سچ کیا تھا، جھوٹ کیا تھا، حق کیا تھا، باطل کیا تھا. یوسف علیہ السلام یقینی طور پر انتہائی پاک دامن اور بے داغ اور بالکل کریکٹر فل تھے، کریکٹر لیس نہیں تھے، بہترین کردار کے مالک تھے. یہ گواہی دے دی گئی. اور پھر اللہ رب العالمین نے، اللہ اکبر، جو اللہ کی ترتیب بن رہی تھی اور اللہ رب العالمین جو سوچ رہا تھا اور جو منصوبہ بنا رہا تھا وہ یہی تھا کہ تم پھینک دو چاہے یوسف کو کنویں میں اور جو چاہے یوسف کے ساتھ کر لو. ہم نے یہ سوچا ہوا ہے، ہم نے یہ سوچا ہوا تھا کہ ہم اس کو مصر کا بادشاہ بنائیں گے، ہم اس کو مصر کا تخت دیں گے. اس لیے میں نے پہلے بھی کہا، آج بھی کہتا ہوں کہ لوگ اگر آپ کے خلاف، میرے خلاف سازشیں کریں، چاہے جھوٹے پروپیگنڈے کریں، الزامات لگائیں، لیکن اگر آپ کا دل خالص ہے، آپ کو اللہ پر یقین ہے، توکل اللہ پر ہے، بھروسہ اللہ پر ہے، تو چاہے جو کوئی کچھ بھی کر لے، اللہ رب العالمین آپ کو عزتوں سے سرفراز ضرور فرمائے گا، عزت لازمی دے گا، اور ادب و احترام دنیا والوں کے نزدیک اللہ رب العالمین مزید بڑھا دے گا. یہ یوسف علیہ السلام کی سیرت اور سورہ یوسف کا ایک خلاصہ ہے. اور آخری بات سن لیجئے، آخری بات سن لیجئے، پھر کل انشاءاللہ سورہ رعد بھی شروع کریں گے.
और उसी के साथ इंशाअल्लाह 14वां से 12 भी शुरू करेंगे। आखिरी बात यह है कि जो कुफार होते हैं ना, जो काफिर होते हैं, उनके अंदर कुव्वत बर्दाश्त नहीं होती, डर जाते हैं, बहुत जल्दी डर जाते हैं, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं और बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं कि अब तो ये काम हो ही नहीं सकता, अब तो ये मामला सुधर ही नहीं सकता। लेकिन जो मोमिन होता है, ईमान वाला होता है, जिसको अल्लाह पे यकीन होता है, वो हादसा से नहीं घबराता। याकूब की तरह अलैहिस्सलाम, हादसा कितना बड़ा था, नहीं घबराया। अल्लाह मुस्तान, जितना बड़ा भी हादसा है, परेशानी है, आजमाइश है, मेरा मददगार कौन है? अल्लाह। और अल्लाह से नाउमीद नहीं हुए, अल्लाह से नाउमीद नहीं, उम्मीद कायम है, उम्मीद कायम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे मेरे बेटे से मिलवाएगा, मुलाकात होगी, इज्जतों से सरफराज फरमाएगा। तो ये दो चीजें मजीद इसमें ऐड कर लीजिए कि कुव्वत बर्दाश्त अपने अंदर पैदा कीजिए, कुव्वत बर्दाश्त पैदा कीजिए, हादसा से नहीं घबराइए, अल्लाह पर यकीन रखिए और साथ साथ उम्मीद का दामन कभी न छोड़ें। कभी मायूस ना हो कि थक गया हूं जी, बस अब नहीं होता, अब थक गया हूं, बहुत कर लिया, अब नहीं होता। नहीं, कभी भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से ना उम्मीद नहीं होना। यही इसका खुलासा भी है और यही इसका मरकजी ख्याल भी है कि वो जो हम जो सोच रहे हैं सोचते रहें, लेकिन वो जो हमारे लिए सोच रहा है वो सबसे बेहतर सोच रहा है। इसलिए अपना दिमाग लड़ाने से बेहतर है कुछ चीजें अल्लाह पे छोड़ दें। अल्लाह जो कर सकता था कर लिया, आगे अल्लाह तू जाने और तेरा काम जाने, मेरे लिए बेहतरी वाले रास्ते बना दे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हम सब का खात्मा ईमान पे फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।